ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। Exploring potential growth sectors beyond the ITES sector. Of course, Manik rightly said, I'm not very delighted at this 7% growth that somebody called phenomenal in that video presentation. But Manik bhai, I'm not even happy about a 15% growth for that matter. This is one sector which truly has a phenomenal future, if you ask me. And I'd like to give you some statistical background to where this sector was and what outstanding work you actually have done, but somewhere along the line it seems to have slowed down. My colleagues just told me in the year 2000, while we had a goods export of about $45 billion, our services export was about $10 billion. So you were 1/4 of the goods export. By 2015-16, services had grown to about 154 billion and goods was at about 262 billion. So you were almost at over half of what the goods or merchandise export was. That was a truly good period, I think, and IT sector must have played a phenomenal role in this massive ramp up to 154 billion. Of course, India opened up, the telecom sector opened up, we had more technology-based exports coming into the field. But since then is when that 7% growth has now come into the picture. And while of course last year we were at 206 billion and this year you aspire to be at 250 billion, kindly bear in mind that while you were at 206, goods was at about 290. So you were almost at 60% of goods export. But if you even now do 250 billion this year, I'm confident merchandise is going up to 400 billion. So you've again come down in some sense in relation to goods. And I would like to propose that there should be a race to the top between goods and services. In another part of your presentation, you said 60% of the economy comes from services, or you provide more than half the employment in the country. And considering that, I think there's no reason why when we are looking at going up to $1 trillion of merchandise export, services should also not be aspiring to look at $1 trillion of services export. And I would think we should truly look at this kind of a transformational growth in this sector so that both goods and services can each contribute $1 trillion to the national GDP, one through goods, one through services, and let's make the game even between the two sectors. It's possible, it's truly possible. We have some wonderful skill sets in the country. The way IT industry, of course, is growing is very, very exciting. But education, technology-based healthcare, all the other management and business services that are possible. Legal services, where of course we'll need Lalitji's deft management to get the lawyers on board. Because I personally believe opening up legal services in India will actually be a net-net gain for the lawyers of India. Because no lawyer is going to come from America or Europe and practice at Indian rates. But Indian lawyers will get huge opportunities in Europe, in Australia, in America, and all over the world actually, with the kind of skills that our lawyers have. I personally believe it will open up huge opportunity for the legal profession. So there are various ways in which we can change this equation. But I would urge the SCPC, which is in a way the apex body of the services sector and probably the only body of significance other than NASSCOM, to look at taking this sector on a
mission mode, on a fast track mode, and aim for your first goalpost of 500 billion. I don't know when that can be. That should be probably an aim for 25 or 26. And you should be looking at $1 trillion, maybe around 30 or thereabouts. If we can look at that kind of a transformational growth in services, then it certainly encourages us also to be much more forthcoming. And by forthcoming, I don't mean those small incentives that you are counting a few hundred crores here and there. Believe me, my own experience after 7.5 years in government clearly tell me that all sectors which have tried to grow on the back of subsidies, on the clutches of subsidies, have really not flourished. तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे राजधानी दिल्ली से, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 है उसको वो संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जो 60% इकॉनमी है उसमें 60% हिस्सा जो है वो सर्विस सेक्टर का है, उससे हमारी इकॉनमी चलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव जिसमें कि तमाम इससे जुड़े जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कल से रीजनल जो सिक्योरिटी डायलॉग है उसकी शुरुआत होने जा रही है अफ़गानिस्तान के मसले पे, और इसमें भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं वो अपने तमाम जो काउंटर पार्ट्स हैं इस पूरे इलाके से संबंधित उनके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें होंगी। लेकिन इस पूरे डायलॉग के दौरान पाकिस्तान और चाइना ये दोनों ही देश इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं आलोक बंसल जी जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिड डे प्राइम में। और सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होने जा रहे हैं इसमें कि NSA लेवल के तमाम लोग इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा कि इसमें पाकिस्तान पहले मना कर दिया कि हम शामिल नहीं होंगे और अब चाइना ने भी मना कर दिया कि हम भी उसमें शामिल नहीं होने जा रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? जहां तक सवाल चाइना का है, चाइना ने ये कहा है कि हमें अपने शेड्यूलिंग में कुछ समस्या होने के कारण हम इसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात करते रहेंगे, और उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया है। उन्होंने जो कहा है कि हमारे जो NSA हैं या उनके इक्विवेलेंट जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं वो किसी अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और इस कारण उस पर वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का समर्थन देने की कोशिश की है, बिना बातचीत का जो लय है या बातचीत का जो तार है उसको पूरी तरह से ना तोड़े। लेकिन जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, हमें यह समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो भी समस्या है जिसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, पाकिस्तान उसका कर्ता धर्ता है। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहाँ आएंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर देना उनके लिए संभव नहीं हो। लेकिन वो तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। देखिए, उनका ये है, उनको ये लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान जो है उनकी जागीर या रियासत है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान जो चाहे वो वहां पे हुकूमत करे, वही चाहे शासन चलाए। अगर हम देखें जो स्थिति वहां पे पैदा हुई है उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा सेनाओं ने तालिबान की खुलेआम मदद की और जिसके कारण अफगानिस्तान पर आज तालिबान का कब्जा है। तालिबान की जो सरकार बनी उसमें भी पाकिस्तान का रोल है, लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद जो जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनके लिए चिंता का माहौल है। और इसीलिए ये जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालिबान की जो विचारधारा है वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर सीमित रहने वाली नहीं है। उस विचारधारा का असर ईरान पर भी पड़ेगा, मध्य एशियाई राष्ट्रों पर भी पड़ेगा, कुछ हद तक रूस के अंदर भी पड़ेगा, कुछ हद तक चीन पर भी पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है, चूंकि तालिबान का कर्ता धर्ता रक्षक सब कुछ है, वो अभी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको पता हो कि अभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ हक्कानी ने इनकी बातचीत की है, जिसके बाद सीज फायर हो गया है इनका TTP के साथ, तो ये सब दर्शा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान और जो तालिबान के विशेषकर वो अंग जो और ज्यादा कट्टरपंथी हैं जैसे कि हक्कानी नेटवर्क है, उनके तार किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और चूंकि उनके तार जुड़े हुए हैं, जो भी सुरक्षा सम्मेलन होता
उसमें लोग तालिबान के खिलाफ वक्तव्य देते, क्योंकि तालिबान का अगर हम इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का, तो उन्होंने कई वक्तव्य दिए कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, हम महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं वो कुछ भी वैसा नहीं है जो उन्होंने दोहा से वक्तव्य दिया या खलीलजाद साहब के साथ बातचीत में तय किया, या शुरू में जो उनके वक्तव्य आ रहे थे। तो ये दर्शाता है कि तालिबान वो करने वाला नहीं है जो वक्तव्य वो दे रहे थे। तो अब निश्चित बात है कि जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है ये ना तो अफगानिस्तान के जनमानस के लिए उचित है और ना ही उनके पड़ोसियों के लिए। लेकिन आलोक जी, अगर भारत की अगुवाई में ये रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है तो भारत इसकी अगुवाई क्यों कर रहा है, ये एक सवाल आता है। देखिए, अफगानिस्तान का जो आवाम है वो अगर किसी राष्ट्र को सबसे ज्यादा पसंद करता है तो वो भारत है। अगर आज भी आप अफगानिस्तान के अंदर एक निष्पक्ष चुनाव कर लें कि आप किस विदेशी राष्ट्र से सबसे ज्यादा प्रसन्न है, तो वो भारत है। भारत से वहां का जनमानस अपने आप को एसोसिएट करता है। भारत ने वहां $3 बिलियन का निवेश किया है। निवेश किसी रिटर्न के लिए नहीं किया, हमने कोई व्यवसाय के लिए नहीं किया, हमने कोई तिजारत के लिए नहीं की, हमने वहां निवेश किया है वहां के आवाम की जिंदगी सुधारने के लिए, वहां बांध बनाने के लिए, वहां स्कूल बनाने के लिए, वहां हॉस्पिटल बनाने के लिए, वहां सड़क बनाने के लिए, जिससे कि वहां के जनमानस की जिंदगी अच्छी हो। तो ये निवेश है। तो भारत का तो एक बहुत बड़ा दायित्व है। और दूसरी एक चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो जाता है तो जिस तरीके की विचारधारा के वो जिससे एसोसिएटेड है, तो वो विचारधारा हमारे लिए भी खतरा है। अगर आप देखें, तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद जो आतंक की घटनाएं हैं, जो सीमा पार आतंकवादी जो आ रहे हैं, वो भारत में भी बढ़ गई है। क्योंकि आईएसआई जो अभी तक पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थी, अब वो पूरी तरह से भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और आगे चलकर इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो तालिबान के लड़ाके हैं, अगर अफगानिस्तान पे उनका पूरी तरह कब्जा हो गया तो वो नए युद्ध स्थलों की तलाश में अलग अलग जगह निकल जाएंगे, और उनमें से कुछ युद्ध स्थल हमारी सरजमीन पे हो सकते हैं, और इसके लिए हमें चिंतित होना स्वाभाविक है। और इसीलिए अन्य जो राष्ट्र अफगानिस्तान के अड़ोस पड़ोस में हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये युद्ध स्थल उनकी जमीन पे भी हो सकता है। जी आलोक जी, एक आखिरी सवाल वो ये कि अब तो ये सच्चाई है कि वहाँ पे तालिबान की सरकार है, ऐसे में बहुत से लोग, आपको भी इसके बारे में जानकारी मिलती होगी कि बहुत से लोगों का ये एक सवाल है कि क्या भारत या बाकी और भी जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इसकी सरकार को मान्यता देगी क्या? देखिए, तालिबान का वहां पे कब्जा है ये एक हकीकत है, पर तालिबान का वहां कब्जा बना रहेगा ये हकीकत नहीं है। वहां का जनमानस आज भी तालिबान से ग्रस्त है। वहां की एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है तालिबान से के खिलाफ हैं। अहमद मसूद अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि एक वायबल रेजिस्टेंस तैयार हो जाए। और जब अफगानिस्तान के पड़ोसियों में ताजिकिस्तान ने खुलेआम इसका विरोध किया है तालिबान का। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले एक नॉर्दर्न अलायंस था, उस तरीके से एक वायबल रेजिस्टेंस बनेगा। और ये वायबल रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये वायबल रेजिस्टेंस नहीं रहा तो जैसा मैंने कहा कि तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अब हल नहीं चलाएंगे, वो किसी अन्य युद्ध स्थल की तलाश में निकल जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर उनको हमें अन्य देशों में नहीं भेजना है तो ये कोशिश करनी पड़ेगी कि उनको अफगानिस्तान के अंदर ही एंगेज करके रखा जाए और धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बनाया जाए जिस तरीके के पहले बना था। अहमद मसूद और अब्दुल्ला साले तो इसमें तत्पर है ही हैं, पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उज्बेकिस्तान और जो उज्बेक जो अफगानिस्तान से आए हुए जो उज्बेक मूल के जो नेतागण हैं, जैसे अब्दुल रशीद दोस्तम, ये लोग जो है, नूर अतानूर, ये लोग जो हैं उनके साथ जुड़े, क्योंकि अहमद मसूद अभी ईरान गए हैं। वो ईरान में जो अफगानिस्तान के नेता हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वायबल जो अपोजिशन है, एक विपक्ष इस तालिबान की हुकूमत के, वो एक तैयार होने की आवश्यकता है। और जब ये होगा तो आप देखेंगे कि तालिबान की सरकार का वहां पे रहना अवश्यंभावी है, ऐसा कहना गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे कोविड की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,126 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,982 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.25% हो गया है। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 1,40,638 रह गई है, जो कि 263 दिनों में सबसे कम है। वहीं टीकाकरण की बात की जाए तो देश में कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 109 करोड़ 8 लाख से ज्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 59,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका फ्री में उपलब्ध करा रही है। एक और खतरा जीका का है। यूपी के कानपुर जिले में 10 और लोगों में जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 89 हो गई है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। इस नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो कि 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को जांच के साथ ही अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने की सलाह दी जा रही है। कानपुर के डीएम विशाल ने बताया है कि ये दल इस वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इसके फैलाव और लक्षणों के बारे में भी बता रहा है। कानपुर में जीका वायरस का जो पहला मामला सामने आया था, वो मरीज अब ठीक हो गया है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर उनको 1 हफ्ते के लिए घर में ही रहने के लिए डॉक्टरों ने कहा है। केंद्रीय टीम कानपुर से वापस आ गई है। कानपुर में मरीज के संपर्क में सभी लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। जीका वायरस के लक्षणों में सिर दर्द होना, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होना है। जीका वायरस एक मच्छर से होने वाली बीमारी है, जो कि एडीज मच्छर से फैलती है। मच्छरों की यही प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया का भी कारण बनती है। जीका वायरस के शिकार लोगों में अक्सर लक्षण नजर नहीं आते हैं या फिर इसके लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस पर ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। नितेंद्र नमस्कार। और सबसे पहले तो यही, एक तो इस वक्त पूरा देश कोविड जैसे घातक वायरस से जूझ रहा है और अब ये जीका वायरस जिसका कि प्रकोप कानपुर में फैलता जा रहा है, क्या ताज़ा अपडेट है इसको लेकर? नमस्कार असीम। निश्चित तौर पे जो कानपुर में जीका का मामला है उसमें एक तरह से जो कंट्रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल टीम भी गई थी वहां पर, उन्होंने भी इलाके का दौरा किया और अपने जरूरी सुझाव स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनको दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह थी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी था कि कितने लोग संपर्क में है, कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं, उनको क्या सिम्टम है और उनको उनके सैंपल लेकर के आइसोलेट करना, उनका ट्रीटमेंट करना। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मच्छर से फैलता है, तो मच्छर पनप न पाए, इसको लेकर के जरूरी वहाँ पर निर्देश दिए गए और जागरूकता अभियान चलाने की बात हुई, जिसमें यह है कि साफ पानी में चूंकि ये मच्छर पनपता है, सुबह और शाम के वक्त ही काटता है, तो ऐसे में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। साथ ही साथ बच्चे हों या बड़े हों या गर्भवती महिलाएं, वो फूल बाह के कपड़े पहने, कम से कम अपने बदन को ढक के रखें और साफ सफाई का ख्याल रखें। ये इम्पोर्टेंट बात है। अच्छी बात यह है असीम की एक भी कोई मौत नहीं हुई है इस जीका से, और जो पहला मरीज था जो आर्मी के जवान थे वो ठीक हो चुके हैं, उनका रिपोर्ट निगेटिव आ गया है और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और उनको घर में ही 1 हफ्ते के लिए बोला गया कि आप घर में एहतियात के तौर पर रहेंगे। साथ ही बाकी जो दूसरे मरीज हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले टेस्ट के लिए सैंपल NIB पुणे जाता था, लेकिन अब लखनऊ में ही उसका टेस्ट हो रहा है और कानपुर में टेस्ट की व्यवस्था की गई है। उसके लिए ट्रेनिंग जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं उनको लखनऊ में दिया जा रहा है। कल से टेस्टिंग भी कानपुर में होने लगेगा। तो अभी हालात ठीक ठाक है। और जहां तक कोविड का सवाल है, कोविड के टीकाकरण में तेजी आ रही है। जो हर घर दस्तक की बात है, उसमें स्वास्थ्य कर्मी घर घर जा रहे हैं, खेतों तक में जाकर के लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं और इसमें भी काफी तेजी देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे
आगे दूसरी अहम खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं में 1328 करोड़ की 359 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी और चेक और स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का काम होता है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी देहरादून में पुलिस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों समेत तमाम विधायक और राजनेता मौजूद थे। उत्तराखंड आज ही के दिन साल 2000 में अस्तित्व में आया था। इसके पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस शुभ अवसर पर राज्य के सभी निवासियों के उज्जवल व समृद्ध भविष्य हेतु शुभकामनाएं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य से अलंकृत उत्तराखंड वीर भूमि भी है, जहाँ के हर जिले ने राष्ट्र की सुरक्षा में वंदनीय योगदान दिया है। पूरा देश आपकी वीर परंपरा का आभारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है, उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है, वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। और अब बात करेंगे छठ पूजा की। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज खरना के दिन छठ व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन होगा। कल छठ पर्व के पहले दिन नहाई खाई के साथ इस महापर्व की शुरुआत हुई थी। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। खबर नाइजीरिया से है, जहां दक्षिणी नाइजर के एक स्कूल में आग लगने से कम 25 बच्चों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नाइजर के स्कूलों में अक्सर क्षमता से ज्यादा बच्चे आने पर लकड़ी और सूखी घास से कक्षाएं तैयार की जाती हैं। मराडी शहर के मेयर ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि सोमवार की आग में ऐसी 3 कक्षाएं जलकर खाक हो गईं। हादसे में घायल हुए कई बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रिटेन ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत में निर्मित कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य में बताया है कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड रोधी टीकों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। वे यात्री जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं और इसका सर्टिफिकेट उन्हें मिल चुका है, उन्हें ब्रिटेन यात्रा के लिए पहले से किसी जांच की जरूरत नहीं होगी और ना ही उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने के 2 दिन के भीतर पैसे देकर एक फ्लो जांच करानी होगी। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए यात्रा नियमों को सरल बनाया जा रहा है। इन यात्रियों को माना जाएगा कि उन्हें कोविड रोधी दोनों टीके लग चुके हैं और उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर अलग से पृथकवास में नहीं रखा जाएगा। खबरें खेल जगत से। और खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा मुस्कुराते हुए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सुचित्रा, नमस्कार। शुक्रिया सीम। शुरुआत करते हैं T20 विश्व कप से जुड़ी खबरों के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC T20 विश्व कप में अपने अभियान को शानदार जीत के साथ समाप्त किया। सुपर 12 के अंतिम मुकाबले में भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराने में सफलता पाई। प्रतियोगिता में भारत की लगातार तीसरी जीत है। हालांकि भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। दुबई में चल रहे ICC T20 विश्व कप की सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी टीम इंडिया अंतिम मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करने के इरादे से सोमवार को मैदान पर उतरी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कप्तान के रूप में अपने अंतिम मुकाबले में अंतिम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। नामीबिया ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जडेजा और अश्विन के आते ही एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। इन दोनों ने नामीबिया के बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और एक के बाद एक विकेट लेकर उन पर दबाव बना दिया। नामीबिया के लिए डेविस विसे ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। उनके अलावा स्टीफन बार्ड ने 21 रनों की पारी खेली। वहीं 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। अंत में नामीबिया ने भारत के सामने 133 रनों का लक्ष्य रखा। जडेजा ने अपने 4 ओवरों में 16 रन देकर 3 विकेट लिए और अश्विन ने 20 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह ने भी 2 विकेट अपने नाम किए। 133 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और KL राहुल ने शानदार शुरुआत दी। इन दोनों ने लगातार तीसरे मैच में अर्धशतकीय साझेदारी की। इस दौरान रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे किए और अपने करियर का 24वां अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा ने 37 गेंद में 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। इसके बाद राहुल और सूर्य कुमार ने भी 50 रनों की साझेदारी कर भारत को 28 गेंद शेष रहते 9 विकेट से जीत दिला दी। इस दौरान लोकेश राहुल ने भी अपने करियर का 14वां अर्धशतक लगाया। राहुल ने 36 गेंद में नाबाद 54 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 25 रन का योगदान दिया। जडेजा को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ टीम इंडिया ने कप्तान के रूप में कोहली और कोच के रूप में रवि शास्त्री को जीत के साथ विदाई दी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। विदर्भ के गेंदबाज अक्षय कर्णेवार ने T20 क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अक्षय T20 क्रिकेट में 4 ओवर में एक भी रन खर्च नहीं करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। विदर्भ के ऑलराउंडर अक्षय ने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में ये उपलब्धि अपने नाम की। उन्होंने मणिपुर के खिलाफ खेले गए मैच में काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया। अक्षय ने साथ ही 2 विकेट भी लिए।
तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट यानी लाइफ प्राइम की। संस्कृति और रचनात्मकता को अपने विकास के केंद्र में रखने और ज्ञान और अच्छी प्रथाओं को साझा करने की प्रतिबद्धता को मान्यता देने के तहत यूनेस्को ने 49 शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल किया है। इसके तहत श्रीनगर को भी शिल्प और लोक कला श्रेणी में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब इस नेटवर्क में 90 देशों के 295 शहर शामिल हो गए हैं, जो सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति और रचनात्मकता, शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत में विशेष दखल रखते हैं। तो इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है